This diagram indicates for types of milling operations. First diagram shows that is the peripheral milling, and second one diagram shows that face milling. First diagram shows peripheral milling and second one is the face milling. In the peripheral milling diagram, we have seen that there are a cutter, there are a depth of cut, this one is the feed, job, surface finish, axis of cutter, and in their face milling diagram, you have seen that there are cutter positions, depth of cut, feed, and job. Carefully, this is the axis of cutter, this is the axis of cutter, and this one is the direction, this one is the direction, this one is the cutter position, this one is the cutter, and there are depth of cut, feed, job, feed, feed, job, and the finish surface. That is the finish surface. This is the diagram for types of milling operations. Then now we discuss what is the milling operation. Milling operation जब बात करते हैं मिलिंग ऑपरेशन की तो मिलिंग में बी डिफाइंड एज द मशीनिंग प्रोसेस जिसमें कि हम रिमूव करते हैं एक्सेस मटेरियल को फ्रॉम द वर्क पीस से एक्सेस मटेरियल को हम लोग रिमूव करते हैं किसके थ्रू विद द रोटेटिंग कटिंग टूल्स के थ्रू विद द रोटेटिंग कटिंग टूल्स के थ्रू हम लोग एक्सेस मटेरियल्स को रिमूव करते हैं। तो ये जो रोटेटिंग कटिंग टूल्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिलिंग कटर। ये जो हमारा रोटेटिंग कटिंग टूल है वो हमारा कहलाता है मिलिंग कटर। सो जो रोटेटिंग कटर है टूल्स का वो हमारा कहलाता है मिलिंग कटर। इज अ मल्टीपल पॉइंट टूल हैविंग द शेप ऑफ द solid of revolution with cutting teeth arranged जो कि equal space and either on the periphery or on and face on both। तो यहाँ पर जो रोटेटिंग कटिंग टूल है वो हमारा कहलाता है मिलिंग कटर जो कि मल्टीपल पॉइंट टूल होता है हैविंग द शेप ऑफ अ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन विद कटिंग टीथ अरेंज होता है आइदर ऑन द पेरिफेरी या एंड फेस या बोथ। बेसिकली जो वर्क हम मे बी हेल्ड इन वाइज थ्री जॉ चक एंड इंडेक्स हेड अ रोटेटरी टेबल बिटवीन द सेंटर्स जो कि स्पेशली फिक्सचर या bolted on the bolted to the machine bolted to the machine table। मिलिंग प्रोसेस जिसमें कि इन्वॉल्व होता है साइमल्टेनियस रोटेटरी कटर और यूजली लीनियर जिसमें कि समटाइम्स रोटेटरी मोशन ऑफ द वर्क within the work fed against the cutter and milling process basically used for producing flat countered या helical surface for cutting threads or toothed gears and for making a helical grooves। तो milling process बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैट और काउंटर्ड या हेलिकल सरफेस के लिए, फॉर कटिंग थ्रेड्स और टूथेड गेयर्स और फॉर मेकिंग अ हेलिकल ग्रूव्स के लिए। तो जनरली हम बात करते हैं देयर आर ऑल मिलिंग ऑपरेशन कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। पहले बात करेंगे यहाँ पर पेरिफेरल या हॉरिजॉन्टल मिलिंग के बारे में। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फिनिश सरफेस है is parallel to the axis of cutter finish surface peripheral milling या horizontal milling के अंतर्गत यहाँ पर जो finish surface है वो parallel है axis of the cutter के जो कि machine by the cutter teeth located on the periphery cutter। that is the diagram। this one is the cutter, this one is the finish job। तो यहाँ पर जो finish surface है वो parallel है किसके पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कटर के और जो मशीन है बाय द कटर टीथ लोकेटेड है ऑन द पेरिफेरी ऑफ द कटर एज सुन। देन फेस मिलिंग या वर्टिकल मिलिंग के अंतर्गत क्या होगा इन देयर फेस मिलिंग या वर्टिकल मिलिंग। इन फेस मिलिंग जो फिनिश सरफेस है वो एज एट द राइट एंगल टू द कटर एक्सिस और जो कि ऑब्टेन्ड बाय द टीथ ऑन द पेरिफेरी एंड द फ्लैट एंड ऑफ द कटर। The face milling या vertical milling, in the face milling your finished surface is at the right angle to the cutter axis or is obtained by the teeth on the periphery and the flat end of the cutter।
व्हाट आर द सरफेस जनरेशन मेथड? इन देयर सरफेस जनरेशन मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज देयर आर द टू बेसिकली मेथड्स of milling: flat surfaces with the plain milling cutters, and there are these cutters have a teeth only on the periphery on the of the cutter, so depending upon the relative direction of the feed of the work table and the rotation of the cutter. This is the diagram shows that there are up cutting and there are down cutting. This is the diagram for up cutting, this is the diagram for down cutting. Up cutting में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे feed की direction आपको दिखाई दे रही है, this is the feed direction and this is the chip, this is the chip, this is called for the cutter, this is the cutter, and this direction is this and this direction is this. So this is the up cutting in there are up cutting position, and this one is the down cutting where both the direction of feed is this and cutter position. तो जब हम लोग बात करते हैं अप मिलिंग की या उसको बोलते हैं कन्वेंशनल अप मिलिंग, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फीड होती है हमें ध्यान रखना होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ फीड होती है वर्क टेबल की वो अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कटर की. हमें ध्यान रखना है कि जब हम लोग बात करेंगे कन्वेंशनल अप मिलिंग, कन्वेंशन या अप मिलिंग, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फीड होती है वर्क टेबल की वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कटर के. Here, the direction of feed of the work table is opposite to the direction of rotation of the cutter. Second, that is a climb milling या down milling जिसको बोलते हैं. यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ द वर्क टेबल की वो फीड होती है एंड द रोटेशन ऑफ द कटर इज सेम. यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ वर्क टेबल फीड एंड द रोटेशन ऑफ द कटर इज सेम. कन्वेंशनल अप मिलिंग में यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है फीड की, डायरेक्शन ऑफ फीड जो था वर्क टेबल का वो अपोजिट था डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द कटर की. जबकि क्लिम डाउन मिलिंग में हम यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर जो डायरेक्शन ऑफ वर्क टेबल की वो फीड एंड द रोटेशन ऑफ द कटर इज सेम. तो इन आइदर केसेस द इंडिविजुअल चिप्स जो है वो कट इन द मिलिंग प्रोसेस. In either cases, the individual chips cut in the milling process are the variable thickness, having the cross sections resembling a comma. In conventional milling, the thickness gradually increase during the cut. In climb milling, the cutter tooth takes a chip of maximum thickness at the beginning of cut and of a zero thickness at the end. So the basic advantage of conventional milling are that the load on each cutter tooth is gradually increased and the teeth start cutting under the metal skin of the workpiece. The initial tooth contact usually occurs in a clean metal and ends by lifting or peeling off through the surface scale. Due to this reason, due to this reason, the method of milling is preferred for the machining, sand casting, forgings, and matters that have a rough or hard abrasive surface scale. So disadvantage are the cutter tends to lift the workpiece or from the work table, और as the teeth tends to dull, जो जिसमें कि each tooth slides across the workpiece surface a minute distance before it's begin to cut, producing a characteristic wavy surface. There is the tendency of lifting the work table also along with the lifting the job from the table or fixtures. Since the cutting forces are directed upwards, this increases the clearance between the table and the bed for bed yes saddle way. In making heavy cuts, such clearness leads to vibrations which impair the surface finish product on the job. Again, chips accumulate hogi ahead of cutting zone, where they can be picked up by the teeth and carried around the to impair the finish. Also, it is difficult हो जाता है to machine thin sheet or workpiece where the clamping is inadequate, since the table is to feed against the cutting force and the feed motor or main motor power जो होती है वो consume करते हैं और comparatively more.
जो फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर कन्वेंशनल मिलिंग की आर दैट द वर्क मस्ट बी rigidly held to offset the tendency of the cutting forces to lift or pull the work out of the vice और fixture। तो बात करते हैं पर्टिकुलर जो एडवांटेज ऑफ क्लिम बिलिंग की, दैट इज द जॉब जो कि फोर्स अगेंस्ट द टेबल और द टेबल अगेंस्ट द वेज, जो एलिमिनेटिंग एक्सिस क्लियरेंस particular in jointing surfaces or resulting vibration, and also the chips are deposit behind the cutter and out its of its way। So ये factors जो कि given a better surface finish than in conventional milling, again less power is required in climbing milling because of less power it is consumed in the feed motions, increase the cutting speeds, and there are feeds are possible, also thin sheet can be easily machined। So the favorable condition होती है for climb milling की are that the workpiece has no hard be easily machined, and a favorable condition for climb milling key, that is the workpiece has no hard skin, the milling machines is in good condition, and there is a no excessive blackness in the table screw and nut. So since any looseness will allow the cutter to draw the workpiece ahead and take its bites are nut bites that are too large, and the method is usually for the milling operation on सिलेंडर या इंटीग्रेट पार्ट्स। तो दिस इज द, हमने यहाँ बात करी मिलिंग क्या होता है, यहाँ पे हमने बात करी कि मिलिंग जो हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मशीनिंग प्रोसेस जिसमें कि हम एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं वर्क पीस से और विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग कटिंग टूल्स जिसको हम लोग बोलते हैं मिलिंग कटर, और जो कि मल्टीपल पॉइंट टूल होता है और पर्टिकुलर शेप या सॉलिड रिवॉल्यूशन के थ्रू उनमें कटिंग टीथ अरेंज होती है इसके अंदर। इसके बारे में बात की, और जो वर्क हम मे बी हेल्ड वाइस या थ्री जॉ चक या एन इंडेक्स हेड या रोटरी टेबल बिटवीन द सेंटर, और स्पेशली हम लोग फिक्सचर या बोल्टेड को मशीन टूल्स टेबल्स को यूज़ करते हैं। देयर वर दिस इज द डायग्राम फॉर पेरिफेरल मिलिंग डायग्राम, दैट वाज द फेस मिलिंग जिसमें कि शेल एंड मिल टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशन। फिर हमने बात करी यहाँ पर फेस मिलिंग की, तो इन देयर वर पेरिफेरल मिलिंग में हमने यहाँ पे देखा कि जो फिनिश सरफेस होता है वो पैरेलल होता है एक्सिस ऑफ द कटर के, और जो कि मशीन बाय द कटर टीथ जो कि लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द कटर के। फिर फेस मिलिंग में बात करें, जो फेस मिलिंग होती है उसमें जो फिनिश सरफेस होता है वो राइट इज द राइट एंगल टू द कटर एक्सिस, और जो कि ऑब्टेंड होता है बाय द टीथ ऑन द पेरिफेरी एंड द फ्लैट एंड ऑफ द कटर। फिर हमने बात करी सरफेस जनरेशन मेथड की जिसमें कि कन्वेंशनल अप मिलिंग और क्लिम डाउन मिलिंग को डायग्राम को यहाँ पे एनालाइज किया। कन्वेंशनल अप मिलिंग में हमने यहाँ देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ फीड होती है वर्क टेबल की वो अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कटर की, और क्लिम मिलिंग में हमने देखा कि जो डायरेक्शन ऑफ वर्क टेबल की फीड की और रोटेशन ऑफ द कटर की वो सेम होती है। फिर हमने बात करी कि जो केस है पर्टिकुलर इंडिविजुअल चिप्स का वो कट होता है मिलिंग प्रोसेस में, जो कि वेरिएबल थिकनेस और क्रॉस सेक्शन रीअसेंबलिंग एंड कॉमा, और जो कन्वेंशन मिलिंग जो थिकनेस ग्रेजुअली इंक्रीज होती है ड्यूरिंग द कट, और क्लिम मिलिंग और कटर टूथ जो होते हैं वो टेक करते हैं चिप ऑफ मैक्सिमम थिकनेस जो कि बिगिनिंग टू द कट ऑफ द जीरो थिकनेस एट एंड। फिर हमने बात करी एडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल मिलिंग की, जो बेसिक एडवांटेज बात करें यहाँ पर कि जो इसमें लोड होता है ऑन ईच कटर का टूथ का वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और साथ ही साथ टीथ जो स्टार्ट करता है कटिंग अंडर द मेटल स्किन ऑफ द वर्क पीस, और बेसिकली इसमें जो इनिशियल टूथ कांटेक्ट होता है वो हम बेसिकली देखते हैं कि यूजली अकर्स होता है इन क्लीन मेटल, और एंड्स होता है बाय लिफ्टिंग या पीलिंग ऑफ द रफ सरफेस के। यही रीज़न होता है कि जिसमें कि हम लोग जो मेथड्स ऑफ मिलिंग जो होता है प्रेफर करते हैं फॉर मशीनिंग, जैसे कि सैंड कास्टिंग के लिए, फोर्जिंग के लिए, और मेटल्स के लिए, या हैव अ रफ या हार्ड एब्रेसिव सरफेस स्केल के लिए। और जो बेसिकली हम बात करते हैं मिलिंग के डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज ये है जो कटर जो टेंड्स टू लिफ्ट द वर्क पीस फ्रॉम द वर्क टेबल एंड द टीथ टेंड्स टू डल, और ईच टूथ स्लाइड अक्रॉस द वर्क पीस सरफेस जो कि माइन्यूट डिस्टेंस अकर करता है बिफोर द इट्स बिगन टू कट, प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक वेवी सरफेस यहाँ पे इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जो टेंडेंसी होती है लिफ्टिंग द वर्क टेबल की ऑल्सो अलॉन्ग द लिफ्टिंग द जॉब फ्रॉम द टेबल या फिक्चर, एंड ऑल्सो सिंस द हमने यहाँ पे देखा जो सिंस द कटिंग फोर्सेज आर डायरेक्टेड अपवर्ड्स, और जो इंक्रीज द क्लियरेंस बिटवीन द टेबल एंड द बेड और सैडल वेज। So this is the milling operations, and now we
See out there are type of milling machines.